ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਕਲਾਸ 11th ਦਾ ਬਰਨੌਲੀਅਮ ਥਿਊਰਮ ਟੌਪਿਕ। ਬਰਨੌਲੀਅਮ ਥਿਊਰਮ ਕਲਾਸ 11th ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਹੈ ਬਲਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਟਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਤੇ NCERT ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਫਲੂਇਡਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਫਰਦਰ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਦ ਵੀਡੀਓ। ਜੋ ਬਰਨੌਲੀਅਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਸਟੇਟ ਦੈਟ ਦ ਸਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਨਰਜੀ, ਕਾਈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous fluid in a streamlined irrotational flow remains constant along a streamline। मतलब ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਨ ਵਿਸਕਸ ਫਲੂਇਡ, ਨੋਨ ਵਿਸਕਸ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਅਗਰ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ P ਪਲਸ ਹਾਫ ਰੋ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਰੋ GH ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਪਲਸ ਜੋ ਕਾਈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਐਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਪਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਨਰਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਓਕੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਨੌਲੀਅਮ ਥਿਊਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਵਰਡਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਬਰਨੌਲੀਅਮ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰਮ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੀਵਰਡ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਰਨੌਲੀਅਮ ਥਿਊਰਮ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਾਈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਾਫ mv ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? mgh। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਵਰਕ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਨਟੂ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ? ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਦੀ? PdV, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਤੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਬਟ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਕੀਵਰਡ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਬਸ ਇਹ 4 ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬਰਨੌਲੀਅਮ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਰਾਈਵ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜੋ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਰਕਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ B ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P1 ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ V1, ਏਰੀਆ A1, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਸਟ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ V1 ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ V2, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਅਤੇ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ V2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ V2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ V2 ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੈ V1, V2 V1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਕੀਵਰਡ 'ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਉਸਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ,
देखो इनक्रीज, शॉर्ट च लिख रही हूँ मैं, इनक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी च इनक्रीज किद्दां आया, इत्थे मोशन च नहीं है, इत्थे इन्हें कितनी ज़्यादा जो है एनर्जी अचीव की तो इत्थे पहुँच गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी वध गई है ना। सो आपां की करांगे, वड्डी चीज़ चों छोटी माइनस करदे हां, तां पहलां इहदी काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम तो कॉन्सटेंट ही है, इहदे विच की हुंदा है फॉर्मूला की है हाफ एम वी स्केयर, वी दी वैल्यू इत्थे की है V2 मतलब V2 स्केयर माइनस हाफ एम V1 स्केयर, मतलब कुछ नहीं किया, V की जगह आप V2 V1 करता क्योंकि V अपने को दो जगह पर प्रेजेंट है। उस तो बाद देखो ये हैगी अपने को फर्स्ट इक्वेशन। सैकेंड इक्वेशन है साडे कोल डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जिद्दां जिद्दां पानी अगे फ्लो कर रहा है या कोई भी चीज़ अगे फ्लो करती पई है इस ट्यूब दे विच, ते की हो रहा, पहला काइनेटिक एनर्जी इनक्रीज हो गई, इत्थे सी कोई ऑब्जैक्ट उत्थे पहुँच गया, फिर अगे है पोटेंशियल एनर्जी, वो की चीज़ है भी उहदी पोजीशन करके, देखो मान के चलो इत्थे है कोई चीज़, ठीक है, इस तरीके दे नाल ये हाइट है अपन दिता होया है, इनू H1 मनो, इनू H2 मनो, ठीक है। हुण पोटेंशियल एनर्जी इहदा डिफरेंट होएगा, पोटेंशियल एनर्जी इत्थे देखो घट है, इत्थे की है ज़्यादा, सो आपां ज़्यादा चों घट माइनस कर रहे हैं, फॉर्मूला की हुंदा है MGH, M भी सेम है G भी सेम है, H1 माइनस MGH2, ये साडे कोल सैकेंड इक्वेशन है। फिर थर्ड जो अपने कोल सी दैट इज़ वर्क डन। वर्क डन दे विच देखो आपां की करांगे, वर्क डन पहला मैं लिख लां क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन बहुत वड्डी हो जाएगी, फिर पूरी एक वीडियो च कवर नहीं हो पाना, सो पहले मैं लिख दी हाँ फिर समझानी हाँ, ओके। हाँ जी, हुण आपां की कीता, वर्क डन जो है ए पॉइंट ते पहला उन्होंने कढ़िया, वर्क डन का फॉर्मूला हुंदा है फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट, असीं पहलां गल कर चुके हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला असीं पढ़िया है पिछले चैप्टर्स दे विच, दैट इज़ प्रैशर अपॉन एरिया, ठीक है। आपां इहदा फॉर्मूला नहीं पढ़ते जिवें प्रैशर की है फोर्स अपॉन एरिया, उदां ही ये इहदा फॉर्मूला है, तो आपां इहदी जगह ते फोर्स की जगह ते PA लिखता। फिर डिसप्लेसमेंट, डिसप्लेसमेंट देखो आपां की पढ़ते हैं भी जो अपने कोल वेलोसिटी है, वेलोसिटी किहदे इक्वल हुंदी है डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम डिवाइड च है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो की आ जाएगा जो डिसप्लेसमेंट है ਉਹਦਾ फॉर्मूला VT, तो इत्थे आपां VT भरता। हुण देखो आपां फस्ट पॉइंट की गल करते हैं, तो इत्थे सब दे नीचे आपां 1 1 लाया होया है, सो P1 A1 V1, T तो हैगा ही नहीं, T टाइम तो दोनों लिए सेम है ना, अलग अलग टाइम तो हो नहीं रहे, इकट्ठे ही हो रहे हैं प्रोसैस, इक्को ही प्रोसैस है, T आपां ने बाहर रखा। देखो P1 एवें रहा, ये फॉर्मूला काहदा है अपने कोल A1 V1 T, देखो टाइम तो जो ये हो रहा है, ठीक है, टाइम मतलब कि A इंटू V, मतलब किन्नी वेलोसिटी दे नाल एरिया किन्ना वो कवर करता है अपॉन किन्ने टाइम च, की हुंदी है वॉल्यूम हुंदी है साडे कोल, ये तो फॉर्मूला है बस, कुछ नहीं करना आपां, ठीक है। वॉल्यूम लिखता, हुण वॉल्यूम का भी फॉर्मूला, बस आपां फॉर्मूले चों फॉर्मूले कड्ढने ने, वॉल्यूम किन्ना हुंदा है मास पॉन डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला की हुंदा है मास पॉन वॉल्यूम, फिर उदां ही मल्टीप्लाई कर दिता है किन्ना आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी P1, ठीक है। ये हो गया अपने कोल A पॉइंट का। B पॉइंट के विच की है सब कुछ सेम, बस P जिथे आपां 1 लिखिया P की जगह 2 कर देंगे, ये अपने कोल B का आ गया, बट इत्थे अपने कोल अलग अलग आए, इत्थे आपां टोटल एनर्जी फिर इत्थे टोटल वर्क मतलब नैटवर्क किन्ना है, नैटवर्क मतलब नैटवर्क नहीं नैटवर्क टोटल वर्क, ठीक है, दोनों नू माइनस कर देंगे, ये अपने कोल बन गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। उस तो बाद हुण आपां फोर्थ अपना कीवर्ड की सी भी लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, वो की सी अपने कोल जो चीज़ां असीं कैलकुलेट कीतियां, जिद्दां असीं इनक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आपां पहलां इनू रख लांगे काइनेटिक एनर्जी दा इनक्रीज, ठीक है। फिर डिक्रीज काहदा कीता आपां पोटेंशियल एनर्जी दा, प्लस इज वी हैव वर्क डन, ठीक है, जो आप उही लिखांगे, ठीक है। हुण देखो आपां की कीता, काइनेटिक एनर्जी जिथे इनक्रीज सी आपां आ वाली वैल्यू पुट करती, फिर पोटेंशियल एनर्जी की जगह, ठीक है, ये वाली, फिर वर्क डन की जगह ये वाली, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का यही निकल के आया सी अपने को ए पुट करता, फिर पोटेंशियल एनर्जी का MGH, ठीक है, आही सी MGH1, बस वही वैल्यू पुट की। उस तो बाद आपां की करना है, जो 2 2 वाले ने वो एक साइड ते कर लेने ने, जो 1 1 वाले अपने को लैटर्स ने आपां एक साइड ते कर लेने ने। देखो जो आपां दोनों कट ले,
इसनूं इस साइड ते ही रहिंदा 2 वाला, इधरों MgH2 सी इहनूं इस साइड ते लै आए, माइनस दा सी प्लस हो गया, ये भी इधर लै आए माइनस दा सी प्लस हो गया। ठीक है, उवें ही इस तरीके दे नाल इहनूं इस साइड ते लै गए, V1 वाला 1 वाली बस टर्म्स एक साइड, 2 वाली टर्म्स एक साइड। हुण अगर असीं गौर करिए तो 2 वाले किहड़े पॉइंट ते सी, B पॉइंट ते है ना, आपां लए सी A वाले पॉइंट ते, आपां 1 वाले ले ले, A1 V1 H1, तो A पॉइंट आ गया, मतलब ये B है तो ये साडे कोल की है A है, दोनों की ने इक्वल ने। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਵਿਦ M/D। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ M/D ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ M/D ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, M ਨਾਲ M ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, D ਨੀਚੇ ਤਾਂ D ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, D V2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, M ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, प्लस नैक्सट च M फिर कैंसल हो गया, DgH2 प्लस फिर M तो इत्थे की सी अपने कोल D सी, हाँ जी D सी, तो फिर देखो M/D दोनों कैंसल हो गए, तो की बच गया अपने कोल P2, सेम इधर हाफ। ठीक है, M नाल M कैंसल, DV1 क्योंकि D डिवाइड च ऊपर जाके मल्टीप्लाई स्केयर, प्लस M नाल M कटिया गया, सो DgH1 प्लस MD दोनों कैंसल ही हो गए, सो बच गया P1। ठीक है, हुण आपां देखो की करना है, इन्हां नूं आपां कॉमन कढ लेना है, हाफ D। हुण देखो ये की है V स्केयर V1, सो ब्रैकेट च V2 माइनस लिया के V1 कर दो, फिर प्लस देखो D इदां ही रखिया, G भी इदां ही रखिया, H2 माइनस H1, देखो कि दोनों ही सेम ने, बस H2 है इत्थे H1 है, तो दोनों नूं आपां इस तरीके दे नाल लिखता, मतलब ये चेंज है। ठीक है, उस तो बाद एक ये P प्रैशर है, प्रैशर एनर्जी ये इधर, प्लस तो आपां माइनस P1 कर देंगे, इज इक्वल टू की बच गया कुछ नहीं, मतलब कॉन्सटेंट वैल्यू है ना इत्थे, इत्थे की अपने कोल कॉन्सटेंट वैल्यू है, असीं पहलां पढ़िया सी वैसे, है ना। उस तो बाद की करना है आपां, ये जो इक्वेशन है इन्हें लिख लो हाफ D। हुण V स्केयर माइनस V, मतलब इत्थे कोई ना कोई वेलोसिटी आऊगी, मान लो तुहाडे कोल हैगी विच 4 वेलोसिटी। ठीक है, माइनस तुसीं करदे पे हो 2 वेलोसिटी, तो माइनस करोगे 2 वेलोसिटी, कोई ना कोई वेलोसिटी आंसर च आएगी, तो इत्थे आपां वेलोसिटी लिख लांगे, प्लस DG एक ये हाइट, कुछ ना कुछ हाइट ही आएगी, हाइट लिखती, प्लस इत्थे की बच जाएगा प्रैशर एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्सटेंट। ठीक है, ये आ गया हुण साडे कोल। देखो D की आपां इत्थे लगाया सी, D लाई सी आपां डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी लाई सी ना, क्योंकि आपां उत्थे वॉल्यूम भरती सी, सो मास अपॉन डेंसिटी, D की है डेंसिटी, डेंसिटी दा सिंबल की हुंदा है रो, ते आपां जिथे जिथे भी D है उत्थे रो भर दांगे बस, क्योंकि बुक दे विच अपना रो दे नाल अपनी इक्वेशन दित्ती हुई है, सो इट विल बी P प्लस हाफ रो V प्लस rho GH is equal to constant, and that is our बर्नौलियम थ्योरम। P पहला लिखता क्योंकि P सिंपल सी, वो कोई चक्कर नहीं, जिहड़ा मर्जी आपां पहला लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपने कोल बर्नौलियम थ्योरम प्रूफ होगी, तो बस उस तो बाद अगर एक होर स्टैप आपां करना चाहिए तो कर भी सकते हैं। उन जिथे तक अपनी इक्वेशन कंप्लीट होगी, बट आप इत्थे डिवाइड विद रो जी भी कर सकते हैं, एक स्टैप होर, जो आप इनू डिवाइड किया रो जी दे नाल, सो P अपॉन रो जी आ जाएगा, प्लस हाफ रो V अपॉन रो जी, रो नाल रो कैंसल हो गया, हाफ V अपॉन जी प्लस रो जी दे नाल रो जी कैंसल, तो की बचेगा H विच इज़ इक्वल टू कॉन्सटेंट। तो दो अपने कोल ने बर्नौलियम थ्योरम, चाहे ये नाल शो कर दो चाहे ये नाल, बोथ हैव सेम मीनिंग, सो दिस वाज आवर बर्नौलियम थ्योरम। उस तो बाद आपां करनियां ने इस दियां लिमिटेशनस, छोटे छोटे 4 पॉइंट ने। सब तो पहला है बर्नौलियम इक्वेशन इज़ एप्लीकेबल अंडर द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कि ये लिमिटेशनस ने भी इन्ना ची बर्नौलियम थ्योरम यूज़ हो सकती है, उंज नहीं। फ्लूइड पहला नॉन विस्कस होवे, मतलब वो ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा मूवमेंट ना करता होवे, इनकंप्रैसिबल होवे, मतलब आप उन्होंने कंप्रैस ना कर सकते, दबीए तो थल्ले ना दब जिओ। ठीक है, स्ट्रीमलाइंड होवे, स्ट्रीमलाइंड की हुंदा है भी सेम डायरैक्शन च सारे पार्टिकल्स मूव करन दे होण, जिवें आपां लाइन च खड़े हुंने आ, है ना, एक इत्थे फिर उस तो पिछे एक बच्चा फिर उस तो पिछे, तो एक स्ट्रीम लाइन है, मतलब इक्को ही डायरैक्शन च, जी आ अगे जाऊगा तो सारे अगे जाते हैं,
है ना। ये हो गया स्ट्रीमलाइंड। द फ्लूइड फ्लो इज़ इरोटेशनल, सब कुछ नो 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 है इत्थे, ठीक है। स्ट्रीमलाइन तो होना चाहिए, टर्बूलेंट नहीं होना चाहिए, सर्कल च नहीं होना चाहिए। कहते इरोटेशनल, इरोटेशनल मतलब भी सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं होना चाहिए, भी मूवमेंट राउंड च नहीं होनी चाहिए ਉਹਦੀ, ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਬਰਨੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅਰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਆਫ ਐਨ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿੰਗ, ਜੋ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਲਿਫਟ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਡ ਸਪਿਨਿੰਗ ਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਪਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਛਲਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਵ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਨੇ 4 ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, 4 ਹੀ ਆ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਰਨੋਲੀਅਮ ਥਿਊਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋ ਅੰਟਿਲ ਦੈਨ ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।